Hello guys, welcome back to my channel and let's discuss the UPSC prelims PYQ with detailed explanation. In last video we have already discussed about the question number 9 and question number 10. So now let's continue with our question number 11. So the question number 11 is asking about which one of the following schedules of the Constitution of India contain provisions regarding the anti-defection. So it is a straightforward question. Let's see what are the options given. A. Second schedule, B. Fifth schedule, C. Eighth schedule, and D. 10th schedule. So we know that the 10th schedule deals with the anti-defection law. Let's read the explanation. So the answer is D. Explanation is here 10th schedule. So we know that the 10th schedule deals with the provision as the disqualification on the ground of defection. So in 1985, the 52nd Constitution Amendment Act added the 10th schedule of the 10th schedule to the Constitution. On the basis of a petition by any other member of the House, it lays out the procedure by which a legislature may be removed from the office on the ground of defection by the presiding officer of the legislature. The chairman or the speaker of the house is tasked with making the final determination regarding disqualification due to the defection. Okay. Both the parliament and the state legislature are subject to the statute. Cool. So now the presiding officer decision is not subject to the judicial review according to the original law. तो आपको समझ आ रहा होगा कि ओरिजिनल लॉ ये बोल रहा है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन है that is beyond the ambit of judicial review, but the condition was struck down by the Supreme Court in Quijotto Holohan judgment 1992, thereby allowing appeal against the presiding officer decision in the High Court and Supreme Court because judicial review is the feature of the Constitution. So let me explain in briefly to you guys. The original law says that the decision of the presiding officer is beyond the ambit of the judicial review, but we know in 1973 in Keshwanand Bharti case, the Supreme Court invokes the doctrine of basic structure, and in doctrine of basic structure the judicial review is the basic structure part of the basic structure. I mean the judicial review is the part of the basic structure, and if something is the part of basic structure, अगर जुडिशियल रिव्यू हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो कोई भी चीज उससे बियॉन्ड मतलब उसकी एम्बिट से बाहर कैसे रह सकती है. तो इसीलिए ये बोल रहा है कि ओरिजिनल लॉ ये बोलता था कि जो हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन है वो जुडिशियल रिव्यू की एम्बिट से बाहर है, बट सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में किहोतो होलन केस में इसको स्ट्रक डाउन कर दिया क्योंकि हमारा जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ basic feature of the constitution. And in the explanation there are other in explanation और भी चीजें हो सकती थी जो इन लोगों को देनी चाहिए थी लेकिन इन्होंने नहीं प्रोवाइड की है. So let me discuss with you guys because I have already mentioned we are going to do the prelims PYQ with detailed explanation so that आपका टॉपिक एक बार में ही कंप्लीट हो जाए. ठीक है. So इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर हमारी 4 कंडीशंस भी होती हैं जिसमें हमारे जो क्या कहते हैं जो हमारे मेंबर हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारे मेंबर डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं. जैसे कि अगर कोई हमारा इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर है, मतलब कि एक बंदा एक इंसान जो है वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़के आया है, अगर उस इंसान ने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया सो वो बंदा उसी मोमेंट पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. ठीक है. अगर किसी भी नॉमिनेटेड मेंबर ने ध्यान से सुनिएगा, किसी भी नॉमिनेटेड मेंबर ने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली आफ्टर 6 मंथ, मतलब कि 6 महीने के बाद अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी तो वो इंसान भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. और अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी एक पार्टी का है और दूसरी पार्टी में जाके मर्ज हो जाता है वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. और चौथी कंडीशन है कि अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमएलए ने विप के अगेंस्ट जाने की कोशिश की तो उस इंसान को भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. सो ये 4 कंडीशन थी जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की. पहला, अगर कोई भी नॉमिनेटेड बंदा
कोई भी नॉमिनेटेड इंसान अगर हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा तो वो ऑन स्पॉट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरा, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर अगर उसने 6 महीने के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तीसरा, किसी ने भी अगर विप के अगेंस्ट जाने की कोशिश की वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और अगर किसी ने भी अपनी पार्टी को चेंज करने की कोशिश की तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन इसमें ना कुछ एक्सेप्शंस भी गिवन है हमको। जैसे कि एक्सेप्शन हमको प्रोवाइडेड है, अगर किसी भी नॉमिनेटेड मेंबर ने, ध्यान से सुनिए, किसी भी नॉमिनेटेड मेंबर ने अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 6 मंथ से पहले ज्वाइन की है तो वो हमारा डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। पहली कंडीशन, किसी भी नॉमिनेटेड मेंबर ने अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 6 महीने से पहले ज्वाइन कर ली तो वो इंसान डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, अगर 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ पार्टी, मतलब कि अगर एक पार्टी के अंदर 100 लोग हैं, ठीक है, और उसके 2/3 मेंबर, या फिर ऐसे मानो क्या कहते हैं, कैलकुलेशन इजी रखते हैं, अगर किसी पार्टी के अंदर 75 मेंबर्स हैं, ठीक है, उस पार्टी की 75 सीट्स हैं, अगर उसके 2/3 मेंबर यानी कि 50 मेंबर जाके किसी भी पार्टी मेंबर जो जाते हैं तो वो 2/3 मेंबर भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ठीक है। सो ये हमारी कुछ एक्सेप्शंस है। और हम विप के केस में हमारा जो लीडर ऑफ द पार्टी होते हैं, अगर डिसाइड करें कि नहीं डिस्क्वालीफाई करना है तो नहीं किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।